बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल के चितरंजन रोड स्थित रूपनारायणपुर मोड़ पर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन में भाजपा नेता अरिजीत रॉय भी मौजूद रहे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 15 मिनट तक चले इस अवरोध को पुलिस के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सोमवार को रूपनारायणपुर में परिवर्तन यात्रा को लेकर झंडा बांध रहे कार्यकर्ताओं पर तृणमूल के गुंडों ने हमला किया। আগামী 5ই মার্চ পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা কল্যাণেশ্বরী মন্দির থেকে এই আপনাদের রূপনারায়ণপুর বাজার হয়ে বারাবণী হয়ে এই জেলায় বেরোবে। তো সেই যাত্রা পথকে সুসজ্জিত করার জন্য গতকাল রাত থেকে এই রূপনারায়ণপুর এলাকার ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা এই প্রবেশ পথে পতাকা লাগাচ্ছিল। সেই পতাকা লাগানোর সময় এই সালানপুর এলাকার তৃণমূলের দুষ্কৃতী গুন্ডা ভোলা সিং এর নেতৃত্বে একদল তৃণমূল গুন্ডা বাহিনী এসে তাদের ওপর হামলা চালায়, তাদেরকে বেধড়কভাবে মারধর করে এবং সেই মারধরে আমাদের সৌমিক হালদার গুরুতর জখম হয়ে জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার মাথায় 4টে স্টিচ পড়েছে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে এসছে। বাকি ছেলেরা যখন ছিল তাতে যখন রেস্কিউ করা হয় তাদেরকেও মারা হয়। আমরা বারংবার কালকে রূপনারায়ণপুর আইসি সালানপুর থানাকে বারংবার বলেছি যখন মারপিট ঝামেলা হচ্ছে যে ওদেরকে ওইখানে গিয়ে প্রোটেক্ট করুন। কোনো পুলিশ আসেনি। 1 ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে এই পশ্চিমবাংলার এই চটিচাটা দালাল মমতার পুলিশ আসেনি। তাই আজকে এই গতকাল রাত্রে নক্কারজনক ঘটনা বিরুদ্ধে আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি এই ডাবরমোড় রূপনারায়ণপুর রোড অবরোধ করেছি। আমার বলা জানতে চাই যে এই বাংলার মাটিতে বারাবণীর মাটিতে আমরা কি ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা লাগাতে পারি না? আজকে প্রশাসন আমাদের বলবে যে এখানে বিজেপির পতাকা লাগা নিষিদ্ধ। যদি তাই বলে তাহলে আমরা উঠে যাচ্ছি। আর যদি বলে যে বিরোধীর গণতান্ত্রিক অধিকার আছে তাহলে কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং যারা এইভাবে গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারছে দিনের পর দিন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নয় কেন? এবং এই ঘটনা পুরো পরিকল্পিত এই এলাকার বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের অঙ্গুলি হিলা। আমাদেরকে মারধর করলে তো আমরা তো ওপেন মার করবো। আমি রাতের অন্ধকারে কেন মারবো? আর ওদের দেখুন নিজেদের মধ্যে ওদের একটা গোষ্ঠী আছে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে। দেখবেন ও ঝান্ডা বাজছে, ওর মন্ডল সভাপতি জানে না। ও কোনো প্রোগ্রাম করছে, ওর মন্ডল সভাপতি জানে না। তো ওদের দুজনের মধ্যেই ঝামেলাটা হয়েছে। ঝামেলাটা আমিও শুনেছি হয়েছে, ওদের মধ্যে হয়েছে। ঝান্ডা লাগাবার নিয়ে হচ্ছে। ওদের যে পুরনো কর্মী আছে, পুরনো আর নতুন নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। ওদের নিজেদের ব্যাপার আছে, এটা তো আমাদের কিছু না। কিন্তু সে তো প্রকাশ্যে অভিযোগ করছে কি ভোলা সিং সেখানে ছিল এবং তার কর্মীরা তৃণমূল কর্মীরা ছিল। সেটা নিয়ে কি বলবেন? ছিল এটা হতে পারে, আমরা কেন করতে যাব? আমাদের কি আছে? ওদের মধ্যে নিজের লড়াই। কিছুদিন আগে দেখবে জেলা অফিসে এরা মেরেছিল একটা গ্রুপকে, সালানপুরে একটা গ্রুপকে মেরেছিল। ওরাও সুযোগ করে মেরেছে। হতে পারে আমাদের ছেলেগুলো ওইখানে গেছিল, সাইডে ছিল, দেখেছে, ওরা দাঁড়িয়েছিল, তো কিছু ব্যাপার না। তাহলে এই অভিযোগটা কি অস্বীকার করছেন আপনারা? অভিযোগ এটা কিছু নেই। অভিযোগ ওদের আর কোনো ইস্যু নেই। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে যেটা হবে এখন TMC করবে, আর তো কোনো ইস্যু নেই। এখন যে করবে সালানপুর ব্লকে যা বারাবণী ব্লকে TMC করছে এরাই। এটাই তো নাটক ওদের। এটা টোটালি নাটক সাজানো।
নিজে বাড়িটাকে প্রথমে সাজাক, আমাদের উপরে পরে করবে। নিজের বাড়ি সামলানো যাচ্ছে না, যাবে ও এমএলএ তে দাঁড়াবে, ও নিজে জুতে নেই ওটা। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। आसनसोल महिला उद्योग की ओर से दोल उत्सव के अवसर पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। संगठन की प्रमुख सुदेशना घटक के नेतृत्व में ये यात्रा रविंद्र भवन से शुरू होकर अपकार गार्डन सहित विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए पुणे रविंद्र भवन में समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुदेशना घटक ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में शुरू की गई परंपरा से प्रेरित होकर हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक एकता और परंपरा को जीवित रखना है। এই দোল উৎসব আমরা আসানসোল মহিলা উদ্যোগের তরফ থেকে প্রত্যেক বছরে করাই। হ্যাঁ, আমরা সবাই মিলে প্রভাত ফেরি বের করি। মানে বাঙালির ঐতিহ্য তো বসন্ত উৎসব আর এই দোল উৎসব, তো আমরা তাই বাঙালিরা শুধু আমরা নই, আসানসোলে প্রচুর সংস্থা আজকে বেরোয় এবং রাস্তা পরিক্রমা করি এবং ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েরা নাচে। মানে শান্তিনিকেতনে যে মানে দোল উৎসব বসন্ত উৎসব সেটা তো শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তো তারই পথ অনুসরণ করে আমরা সবাই বাঙালিরা বসন্ত উৎসবের মাটি দিকে দেখে আমরা প্রত্যেক বছরই বের করি। এবছরে বের করেছি আমরা সবাই মিলে। আজকে যে দোল উৎসব, তো এই দোল উৎসবের প্ল্যান আমরা ওই রাস্তা পরিক্রমা করব বিভিন্ন জায়গায়। রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হচ্ছে, সেটা আপকার গার্ডেনের ভেতর দিয়ে যে কিছুটা রাস্তা পরিক্রম করে তারপর আমরা নিজেদের মধ্যে মানে হোলি মাখামাখি করে তারপর আনন্দ করে শেষ। দোল উৎসব কটা থেকে কটা পর্যন্ত এখানে পালন করা?
আমরা 7:30 থেকে 9টা, 9:30 পর্যন্ত। আরো বিভিন্ন অনেক অনেক সংস্থায় করে আসানসোলের বুকে, সবাই সেই রবীন্দ্র ভবনে সবাই জমায়েত হয়। আচ্ছা, এই যে দোলযাত্রা আজকের যে এখানে বিশেষভাবে পালন করা হচ্ছে, হ্যাঁ। এটা কোন সংস্থার দ্বারা? হ্যাঁ, এটা কোন সংস্থার দ্বারা এই এইটা আসানসোল মহিলা উদ্যোগ। আসানসোল মহিলা উদ্যোগ। आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। इसी क्रम में आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत 7 कंपनियां केंद्रीय बलों की पहुंच चुकी है और लगातार रूट मार्च किया जा रहा है। मंगलवार शाम करीब 5 बजे कुल्टी थाना क्षेत्र के न्यामतपुर फाड़ी प्रभारी मिहिर कुमार दे के नेतृत्व में न्यामतपुर न्यू रोड से लिथुड़िया रोड होते हुए चीनाकोड़ी बाजार तक केंद्रीय बलों ने रूट मार्च किया। इस रूट मार्च का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और चुनाव से पहले आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना है। बर्नपुर में आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में दोल उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बर्नपुर रोड से बड़ी मैदान होते हुए बस स्टैंड से त्रिवेणी मोड़ तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर उत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान अग्निमित्रा पाल ने कहा कि दोल उत्सव आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने राजनीतिक मतभेद के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। আজকে দোল পূর্ণিমা, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। এবং আজকে আমরা অলরেডি বার্নপুর স্টেশনের সামনে স্টেশন রোডের মুখে আমরা জমায়েত হচ্ছি। আপনারা যে যেখানে আছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ সবাই আসুন, আমরা একসঙ্গে রং খেলব, আনন্দ করব, খাওয়া দাওয়া করব। আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি। নমস্কার। आसनसोल ग्राम बसंत उत्सव समिति की पहल पर इस वर्ष 20वां बसंत उत्सव बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। पूरे क्षेत्र में इस पारंपरिक उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक समाज के हर वर्ग के लोगों ने इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे उत्सव का रंग और भी खास बन गया। उत्सव के मौके पर रामसायर मैदान से एक भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसने पूरे आसनसोल ग्राम का भ्रमण किया। प्रभात फेरी के दौरान पारंपरिक और सांस्कृतिक झलक साफ दिखाई दी। कीर्तन मंडली के भक्ति गीतों के साथ साथ धामसा और मादल की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना दिया। इस आयोजन में ग्रामवासियों की भारी भागीदारी देखने को मिली। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और सामूहिक सहभागिता ने बसंत उत्सव को एक यादगार सांस्कृतिक आयोजन में बदल दिया। समिति के प्रमुख सचिन रॉय ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले 20 वर्षों से वो लोग ये आयोजन कर रहे हैं। বসন্ত উৎসব আসানসোল গ্রাম বসন্ত কমিটির পরিচালনায় এটা আমরা 20 বছর আগে চালু করেছিলাম। দেখছেন সমস্ত কচি কাঁচা এবং মহিলাদের আধিপত্য রয়েছে এখানে, এবং মহিলারাই এটা এখন পরিচালনা করছে।
আমরা পাশে থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি। আমরা চাইছি এই হোলি উৎসব সবাই রঙিন হয়ে উঠুন, সবাই সম্প্রীতি বজায় রাখুন এবং যারা কচিকাঁচা আগামীদের ভবিষ্যৎ তাদের আনন্দের সঙ্গে আমরাও তাদের মিলিত হই। এটাই আমাদের কামনা। সবাই সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। এটাই ঠাকুরের কাছে। আপনার নাম? आसनसोल में 6 मार्च को होने वाले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। यहां अध्यक्ष पद पर 2 भाइयों में ही टक्कर देखी जा रही है। अध्यक्ष पद प्रत्याशी गुरुचरण सिंह भरारा ने प्रेस मीट कर आरोप लगाया कि केवल 10 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करना अव्यावहारिक है। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई वैध मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए, जिससे मौजूदा कमेटी को फायदा पहुंच सकता है। भरारा ने चेतावनी दी कि यदि वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराया गया तो वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों समेत संबंधित पक्षों को लिखित शिकायत भी भेजी है। बोलेंगे। पहले तो सबका आपका थैंक यू, सबको टाइम निकाल के आने के लिए। यहाँ पर आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इलेक्शन अनाउंस किया है 6 मार्च को, और उन्होंने सबसे पहला पॉइंट है कि 26 तारीख से ही स्टार्ट किया है और 6 तारीख तक का टाइम है। माने 10 दिन के अंदर में इलेक्शन पूरा प्रक्रिया, पूरा अरेंजमेंट इलेक्शन का 10 दिन में करने के लिए वो लोग बोला है, जो कि उन्होंने लास्ट टाइम भी यही किया था। 10 दिन में आज की टाइम में हिंदुस्तान या कहीं भी इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे आदमी 3 साल बाद डेथ हो जाता है, नया पैदा होता है, सब कुछ को लेके करना पड़ता है। तो ये इन्होंने इनका सिस्टम बन गया कि इमीडिएट 10 दिन में सब करेंगे, तो कि हम लोग जो मन चाहा इलीगल जो सिस्टम है हम करके इलेक्शन जीतना है। हम लोग का वो पॉलिसी नहीं है। हमारा मेन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट यही चल रहा है 6 साल से 9 साल से जो भी है, और इसमें बहुत सारे फॉल्स वोटर्स को ऐड किया गया है। ये मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं क्योंकि जो लास्ट कमेटी थी उसमें मैं खुद वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट था। हालांकि उन्होंने मेरे को ऑफिशियल पेपर में वर्किंग प्रेसिडेंट से खाली वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। इसके बारे में मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा पानी में। तो ये जो उनका फॉल्स वोटर वाला है वो नहीं। हमारा खाली एक रिक्वेस्ट है कि ईच एंड एवरी वोटर की स्क्रूटनाइज, आइडेंटिफिकेशन, हर चीज़। आसनसोल के हरमाडीह इलाके में आदिवासी समाज की ओर से पारंपरिक बाहा पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हुए सामूहिक रूप से भागीदारी निभाई। आदिवासी समाज के मतीलाल सोरेन ने बताया कि बाहा पर्व एक 3 दिवसीय पारंपरिक उत्सव है। पहले दिन समाज के पवित्र जाहिर स्थान पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर पर्व की शुरुआत की जाती है। दूसरे दिन भी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। उन्होंने आगे बताया कि तीसरे दिन इस पर्व को विशेष रूप से पवित्र जल के सहारे मनाया जाता है। ये सामान्य जल नहीं होता बल्कि आदिवासी पुरोहितों द्वारा विधिवत रूप से पवित्र किया गया जल होता है, जिसका इस पर्व में विशेष महत्व है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।